Hello everyone, welcome to our GK class. So today we all are going to start up a new chapter from your GK textbook under the heading Science in Technology. So the name of the chapter is Ancient Indian Medicine and Surgery. So in this chapter, basically we will talk about the ancient surgeons and the ancient medicines or herbs which used by the physicians of that time. Okay, so ancient Indian medicine can conventionally be classified into three broad groups. And what are these? The pre-Vedic period from 6000 BC to 1500 BC, the Vedic period 1500 BC to 600 BC, and the post-Vedic period that is 600 BC to AD 200. So ancient Indian medicine को three broad categories में क्या किया गया है, divide किया गया, classify किया गया है. The first one is the pre-Vedic period, the period of the Ved. Okay, that is from 6000 before Christ. It was before Christ 6000 to 1500 before Christ तक का ये period था. After that Vedic period जो 1500 before Christ से 600 before Christ तक के area में Vedic period था. And after that post Vedic period that is from 600 before Christ to Anno Domini 200, that is at the time of Jesus Christ. Okay, so we use this BC and AD. We count the years with the Jesus Christ. Okay, before Christ, after Christ, and at the time of the Lord. Okay, so now diseases during the pre-Vedic period were attributed to supernatural powers, magic, etc. Hence, the treatment consisted of prayers to appease the supernatural powers and religious rites, talismans, amulets, etc. to counter evil magic. So at the pre-Vedic period, at the pre-Vedic time, डिजीजेस जो थे नॉर्मली किस चीज से एट्रीब्यूट की जाती थी, सुपरनैचुरल पावर्स से एट्रीब्यूट की जाती थी, रिलेट किया जाता था, मैजिक, सुपरनैचुरल पावर्स एक्सेट्रा. और इनकी जो इसका जो ट्रीटमेंट था किससे किया जाता था, सुपरनैचुरल पावर्स के थ्रू किया जाता था. रिलीजियस राइट्स, हवन, यज्ञ, ये सब करवाए जाते थे. तालिस्मन्स, व्हाट इज तालिस्मन? इट इज एन ऑब्जेक्ट हेल्ड टू एक्ट एज अ चार्म टू अवॉइड एविल एंड ब्रिंग गुड फॉर्च्यून. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे कि मतलब जो एक चार्म की तरह हो, एक चार्म की तरह हो, जिससे कि जो जितने भी एविल्स वगैरह हैं वो आपसे दूर भाग जाते हैं और हमारे लिए गुड फॉर्चून, एक अच्छा फ्यूचर लेकर आते हैं. एम्यूलेट्स, द रत्न, ये सारी, द प्रेशियस ज्वेलरी, द पीस ऑफ ज्वेलरी दैट सम पीपल वोर बिकॉज दे थिंक इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द बैड लक, लाइक हीरा, पुखराज, हीरा, पुखराज, मीना, माणक एक्सेट्रा. आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इन टर्म्स के बारे में. दीज आर सम प्रेशियस जेम्स. Now, according to the Hindu mythology, the creator of the universe, Lord Brahma, was the first teacher to make a compilation of Ayurvedic texts, which he later abridged into 8 parts with Kaya Chikitsa, medicine, and Shalya Tantra, that is surgery, as the main subject. So, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे जो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं वो लॉर्ड ब्रह्मा है. एंड ही वॉज द फर्स्ट टीचर जिन्होंने आयुर्वेदिक टेक्स्ट को क्या किया था, कंपाइल किया था. अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है. जब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदर्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. अथर्ववेद इज रिलेटेड टू डिजीजेस एंड मेडिसिन. ओके, सो लॉर्ड ब्रह्मा, उन्होंने आयुर्वेदिक टेक्स्ट को कंपाइल किया था और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उस आयुर्वेदिक टेक्स्ट को 8 पार्ट्स में क्या कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था. एक तो काया चिकित्सा और शल्य तंत्र जो थे वो उसके कुछ मेन सब्जेक्ट्स थे. काया चिकित्सा रिलेटेड टू मेडिसिन एंड शल्य तंत्र इज रिलेटेड टू सर्जरी. नाउ अत्रेया, 700 before Christ to 600 before Christ, was an eminent sage and a pupil of Bhardwaj at Takshila, now in Pakistan. He taught medicine and observed symptoms, diseases, and their correlation. He is rightly known as the Hippocrates of ancient Indian medicine as well as the father of Indian medicine. So Atreya was an eminent sage, बहुत ही important आपके
फेमस एंड इम्पॉर्टेंट ऋषि रहे हैं, और वो भारद्वाज के रहने वाले थे, जो प्रेजेंट डे तक्षशिला में है, जो तक्षशिला में था, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उन्होंने ही टॉट मेडिसिन के बारे में पढ़ा, उन्होंने सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया और डिजीजेस को फिर कोरिलेट करने की कोशिश की थी। एंड उनको हिपोक्रेट्स ऑफ इंडियन मेडिसिन, दैट इज नोन एज हिपोक्रेट इज नोन एज द फादर ऑफ द मेडिसिन, जिसको हम दिराई घोड़ा भी बोलते हैं, तो उन्हें फादर ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। एंड ही इज आल्सो, और यू कैन से फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ओके, हिपोक्रेट इज द is considered as the father of the father of the medicine. So that's why Athreya is known as the father of ancient Indian medicine. Next, Charak was one of Athreya's students. He was a Hindu physician who lived around 320 before Christ. His teachings are compiled into the Charak Samhita. So Charak Athreya का एक स्टूडेंट रहा है चरक, और वो हिंदू फिजिशियन रहा है 320 बिफोर क्राइस्ट एरा से 320 इयर्स आप अगर माइनस कर रहे तो उस टाइम पे रहा है। एंड उसकी जो टीचिंग्स है वो किसमें कंपाइल करके रखी हुई है, किसमें रखा हुआ है, चरक संहिता में। चरक संहिता इस बुक, उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी उसके अंदर कंपाइल की हुई है। लाइक Athreya, धन्वंतरी from 600 BC to 500 BC became a renowned teacher of surgery at Banaras and later came to be known as the patron saint of surgery. Athreya, धन्वंतरी भी Athreya के जैसे ही जो थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टीचर रहे हैं, सर्जरी के टीचर रहे हैं बनारस में। और आफ्टर दैट उनको एक बहुत ही महात्मा, सर्जरी का महात्मा कहा गया है, और वो काफी सपोर्ट करते थे, उन्होंने काफी टीचिंग्स दी है सर्जरी पे। So now just look at this. There is a statement from Charak. A physician who fails to enter the body of a patient with the lamp of knowledge and understanding can never treat diseases. He should first study all the factors, including environment, which influence a patient's disease, and then prescribe treatment. It is more important to prevent the occurrence of a disease than to seek a cure. So a physician, अकॉर्डिंग टू हिम, एक ऐसा फिजिशियन अगर वो पेशेंट्स की बॉडी को झांक नहीं सकता है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि उसके बॉडी में क्या चल रहा है और किस चीज से उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कभी भी किसी डिजीज को ट्रीट नहीं कर सकता है। जितने भी उसके अकॉर्डिंग जितने भी इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमारे एक पेशेंट के, एक रोगी के बीमारी में जो है, बीमारी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बाद ही जो है ट्रीटमेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट बता सकते हो। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अ डिजीज देन टू सीक अ क्योर, अकॉर्डिंग टू हिम, कि किसी भी डिजीज का ऑकर होना, उसे प्रिवेंट करना, उसे दूर रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको क्योर करने से। ये कुछ स्टेटमेंट थी चरक की। नेक्स्ट, if we move to our next page, surgery. So just look at the pictures. उस टाइम पे कैसे सर्जरी वगैरह की जाते थे, ये चिकित्सालय थे, और कैसे गुरु डॉक्टर्स को कैसे कंसिडर किया गया, सेज के भूषा में हमें देखने को मिलते हैं। Surgery is the first and the highest division of the healing art, pure in itself, perpetual in its applicability, a working product of heaven and sure of fame on earth. सुश्रुता जो धन्वंतरी का एक वन ऑफ द मेजर फॉलोवर था, उसके अकॉर्डिंग सर्जरी जो है हीलिंग की सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है, एंड इट्स प्योर इन इटसेल्फ, और इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में एक यू कैन से इसको हेवन से जो है रिलेट किया गया है, कि सर्जरी के बाद जो है, सर्जरी से हम बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। Shushruta was one of Dhanvantari's disciples who attained great proficiency in surgery. Lived sometime in 400 BC. He wrote Shushruta Samhita, which is devoted essentially to surgery. So Shushruta Dhanvantari का one of disciple रहा है, one of the follower रहा है, जिन्होंने सर्जरी में जो है बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंसी पाई है। 400 BC के अराउंड ये रहे हैं, और इन्होंने सुश्रुता संहिता लिखी है, एंड विच इज टोटली डिवोटेड इन टू सर्जरी।
He also wrote on medicine, pathology, and anatomy, midwifery, ophthalmology, biology and hygiene. इन्होंने इन पे भी जो है मेडिसिन, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मिडवाइफरी, ऑप्थेमोलॉजी, बायोलॉजी, हाइजीन, इन सब के बारे में भी, और भी जो ये कुछ जो आपके मेडिसिन और डिजीजेस और इनकी जो हमारी बॉडी से हेल्थ रिलेटेड जितने भी ये स्ट्रीम्स हैं, इन पे बुक लिखी है. He wrote about surgical procedures for anal fistula, fractures, amputations, tumors, hernia and cataract operations. अब कि क्या प्रोसीजर होंगे एनल फिस्टुला के, फ्रैक्चर हो गया तो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई बॉडी में ट्यूमर आ चुका है, कोई गांठ बन गई है तो कैसे होगा, हर्निया का ट्रीटमेंट कैसे करना है, या फिर कैटरेक्ट, आपके आंखों में अगर कैटरेक्ट आ गया है या मोतियाबिंद हो गया है तो आपको उसके ऑपरेशन कैसे करना है, उसके बारे में भी सुश्रुता ने लिखा है. He taught his pupils how to make incisions on the abdomen by using a pumpkin for demonstration purpose. उसने अपने pupils को, अपने followers को सिखाया कि हम pumpkin के through incision कैसे कर सकते हैं. Now, what is the meaning of incision? Incision means कि हम एक कट जो लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं मेडिकल ऑपरेशन में जो भी कट लगता है, तो एब्डोमेन में pumpkin के थ्रू हम कैसे कट लगा सकते हैं. Next, Shishruta's contribution in the field of plastic surgery includes classification of burns, types of bandaging, and description of 20 varieties of sharp instruments, Shastra, and 101 types of blunt instruments, that is known as yantra, and their handling techniques. अब शिश्रुता की जो contribution है प्लास्टिक सर्जरी में, वो उसके अंदर क्या क्या क्लासिफाई किया गया है. बर्न्स के, अगर जल जाती है बॉडी तो उसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स की जो बैंडेजिंग है, जो पट्टी वगैरह करते हैं उसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट, शस्त्र जो यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में, और जो और भी यंत्र वगैरह होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, उन सब के बारे में सुश्रुता का जो प्लास्टिक सर्जरी है उसके अंदर उन्होंने अलग अलग तरीके की चीजें बता रखी है. Shishruta's contribution to allied fields include techniques of making incisions, probing, extraction of foreign bodies, hernia surgery, and study of embroidery. He also classified details of the 6 types of dislocations, 12 varieties of fractures, and classifications of the bones. अब सुश्रुता का जो contribution है वो उसने काफी अलग अलग तरीके के जो इंसीजन, जो कट्स होते हैं, जो इनकी हम कैसे कट लगा सकते हैं, उसके मेथड्स उन्होंने बताया है कि हम फॉरेन बॉडीज को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना भी अपना जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में, अगर उनको कैसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हर्निया की सर्जरी हो गई हमें कैसे करनी है, एम्ब्रॉय की स्टडी हो गई, इन सब की स्टडीज के बारे में ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन ऑल दीज थिंग्स. और उन्होंने डिसलोकेशन, हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स जो होते हैं डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ समटाइम्स बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइजेज या फिर बहुत फिजिकली हार्ड वर्क करने की वजह से भी हो जाता है. तो उन्होंने अलग अलग 6 टाइप्स के डिसलोकेशंस के बारे में बताया है, फ्रैक्चर्स के बारे में बताया है, और बोन्स को क्लासिफाई किया है कि कितने टाइप की बोन्स होती है, किस किस प्रकार की होती है. Shushruta took surgery in ancient India to great heights in an era now regarded as the golden age of surgery. Shushruta का जो पीरियड है, ये 400 BC वाला जो पीरियड है, उसको गोल्डन एज ऑफ सर्जरी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है इंडियन मेडिसिन और सर्जरी में, स्पेशली सर्जरी में. Due to his numerous contribution to the science and the art of surgery in India, he is called the father of Indian surgery and the father of Indian plastic surgery. इनके इतने सारे contribution की वजह से, साइंस एंड आर्ट्स में इतने सारे contribution की वजह से इन्हें father of Indian surgery भी कहा गया है. So now there is an amazing fact. While history credits Copernicus for prospering heliocentric model of our solar system, it was the Rig Veda that first noticed the central placement of the sun and other planets orbiting in the solar system. अब जो हमारी हिस्ट्री है वो, या फिर वर्ल्ड में कोपर्निकस को जो है सोलर सिस्टम का जो है क्रेडिट दिया जाता है, बट इन रियलिटी ऋग्वेदा जो कोपर्निकस से हजारों साल पुरानी है, ऋग्वेदा ने पहले इसमें लिखा हुआ है, ऋग्वेद में ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जो सन है और सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स एक ही ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, घूमते हैं.
उनको ये ऑब्जर्व किया था. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर क्लास. थैंक यू सो मच फॉर listening to me. Bye bye. Take care.